बहुतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त ते कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई। नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। अष्टपदी। करण करावण करनै जोग जो तिस भावै सोई होग। खिनमह थाप उथापन हारा अंत नहीं किछ पारावारा। हुक्मे धार अधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रह्या समाई। कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रह्या समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 11वीं अष्टपदी का श्लोक और अष्टपदी का पहला पदा आप जी ने सरवण किया है। असीस बख्शो। अज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी इस धरती ते वरतन वाले हुक्म नूं साहिब जी दे इस भाणे नूं साहिब जी की रज़ा नूं साहिब जी दे भै नूं जिहड़ा जिन्हों भै विच पवन वह सदवा ते इनू जिहड़ा जिक्र कीता भै विच चलै लख दरियाओ भै विच अगन कड्डे बेगार भै विच धरती दब्बी भार। ये सारा ही है। भै विच इंद फिरै सिर भार भै विच राजा धर्म दुआर। भै विच सूरज भै विच चंद कहो करोड़ी अंत ना अंत। ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया जा सकता सतगुरु जी के हुक्म का। सो आओ जी इस हुक्म नूं विचारीए क्योंकि श्लोक की आरंभता है करण करावण करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। जिहड़ा जल दे विच थल दे विच और मही थल दे उत्ते हर थां ते उस प्रभु का भाणा हुक्म वरत रहा है। सो आओ उस प्रभु नूं बलहार जाइए। असीस वचों मनोबिरतियाँ एकागर करके सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। श्लोक दियां दो तुकां दे विच सतगुरु जी ने ब्रीफली समझा दिता बिल्कुल निचोड़ दे दिता कि जो कुछ वरत रहा उस प्रभु का ही हुक्म वरत रहा। उही करण वाला है उही कारण है। करण और कारण का अर्थ देखो समझियो। असी कहते हैं कि असी उदम करके कुछ करिए ये कारज असी कीता है। सतगुरु जी कहते हैं ये भुलेखा है करण वाला वो प्रभु ही है
और ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਆਪ ਬਣਦਾ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਬੋ ਮਤਲੂਬ। ਆਪ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉसी ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ। ਮਹੀ ਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀ ਥਲ, ਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਓ, ਮਸੂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਲਿਖੈ ਪਵਨ ਚਲਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ। ਦੂਜਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਪੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੀ, ਕਲਮ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਬਿਖਮ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਹੋ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾ ਹੀ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ
इस रूप दे विच त्यागो कि हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पुआई हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझै तां हौमै कह ना कोई। ये हुक्म कोई विरला ही बुझ सकता है, तां उहदी हौमै अंदर मरेगी। साहिब जी कहते कोई विरला समझ सके कि ना हम किया ना करेंगे, कोई विरला समझ सके कि मैं ना ही कछौ ना ही किछ आहे ना मोरा, कोई विरला समझ सके कि जब हम होते तब तू ना ही, जिन्ना चिर तक मैं सी रब तेरी हुक्म दी खेड़ इत्थे पल्ले नहीं पई सी। पर जब जिस दिन पै गई उस दिन पता लग्या जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, हुण मैं कित्थे भी नहीं हाँ, मेरे वस दे विच कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनू ये पता लग गया तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकूं, बरन ना साकूं। आ मैं नहीं, ਇਹਦਾ मतलब मैं ख़त्म हो गया। तुमरी महिमा बरन ना साकूं, मैं बिल्कुल नहीं बयान कर सकता। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुसी बड़े हो, मैं हर हर नाम धर सोई। जे मैनू कुछ आसरा है तो पातशाह जी तुहाडे नाम दा है, प्रभु तेरे नाम दा आसरा है, बाकी सब आसरे इत्थे झूठे ने ते ढैण वाले ने। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुद बिन अवर ना कोई, कोई दूजा नहीं है जो मेरी इस डिगदे दी भव सागर दे विच डुबदे दी बांह फड़े। ते उत्थे जिक्र किया साहिब जी ने, मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आ गए अरदास, मैं होर थां ना ही, दूजा नहीं है। इत्थे ही गुरु अर्जन साहब महाराज जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करण कारण प्रभ एक है, वो इको ही है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, दूजा कौन है। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आ गए अरदास, मैं होर थां ना ही, दूजा ना ही कोई, कोई है ही नहीं, दूजा ना ही कोई। मैं होर थां ना ही जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सब कुछ मैं तुहाडे अगे रख दिता। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार डंडौत बंदना अनेक बार जाऊं बारे, मैं बलहार जाना। अगे साहिब जी कहते सूख दुख इस मन की बिरथा, जे मैं दुख सुख अपने फरोलन बह जा तो फिर मैं इन्ना चिंतित हो जा, मैं इस चिंता दे ही सागर च डुब जाऊंगा। चिंतित ही मैं अपने तन नूं अपने मन नूं गला लवांगा। तो जे मैं किसी नाल दुख सुख साझा करा तो अगला पहला जे दुख ते सुख साझा करन जाओ कि अगला अपने दुखों की पंड खोल के बैठा हुंदा है। किस पह खोलूं गंठड़ी, मैं किदे अगे अपने दुखों की गंढ खोलां। साहिब जी कहते उन्हां कोल मेरे तो भी भारी गंढ भरी हुई है, वो अपनी गंढ खोल के बह जाते। तो जे कोई दुख नूं सुन ले तो फिर वो मखौल बढ़ाउंदे है, जे उन्हां दे सामने अपने सुख दस दो तो फिर ईरखा करते हैं। इस करके मैं सब कुछ छड्ड दिता, मैं होर थां ना ही, जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। इस करके कि सतगुर जी दूसर ना ही कोई, दूजा कोई नहीं है। इस करके सूख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे, मैं सब कुछ तुहाडे अगे सांझ पाई। तुहानूं यही क्या यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। प्रभु मैं एक गल करनी है, क्योंकि मैनू पता है इस दुनिया च कोई भी अपना नहीं है, सब बेगाने ने, सब पराए ने। भावें दुनिया दे इन्हां रिश्तियां नातियां दे विच मनुख लगते हैं कि एक दूसरे की सहायता बांह फड़न वास्ते, पर सतगुर जी दुख वेले कोई नहीं टुकदा ते अंतम वेले भी किसी ने नहीं टुकना। जिस वेले मैनू बहुत चिंता जिहे पेंडे महा अंध गुबारा, ते उस वेले प्रभु तुहाडे ही नाम है, तुहाडा ही सहारा है। जहाँ पंथ तेरा कोना सिंहाणू, जिथे कोई नहीं होएगा मेरे नाल, उथे फिर मैनू पता है दूजा ना ही कोई। इस करके प्रभु जी मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आ गया अरदास। इको ही है, इको है भाई, इको है साहिब मेरा, इको है। इको ही दी गल कीती, एका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। इस इको शब्द विचार दे विच ही मेरा मन टिकेगा।
ज्यों मंदिर को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनै अस्थमन। जिवें आ थंब साडे घरां नूं टिकाई बैठे, खड़ी करी बैठे है इमारतां नूं, इस तरह मेरा मन गुरु दे शब्द दे थंब दे नाल ही टिक सकदा है। करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, दूजा नहीं है। नानक तिस बलिहारना है। धन गुरु अर्जन साहब जी कहते फिर बलिहार जाओ, उस तो कुर्बान जाओ। कुर्बान जाई उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया। जद मैं अपने मन के अंदर टिक के तुहाडे चरनां विच टिकिया, तुहाडे चरनां दा ध्यान धारिया, मैं बलिहार जाना। बार ने बलिहार ने लख वरिया, कहते मैं लख बार उस तो बलिहार जावां। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। तुसी आप हथ दे के बचाउण वाले हो, क्योंकि दूसरा ना ही कोई, दूजा नहीं है कोई। नानक तिस बलिहारना है, उस प्रभु तो बलिहार जाइए। जल थल महियल सोए, जिहड़ा हर थां ते जल दे विच, थल दे विच, मही थल, थल दे उत्ते, हर थां ते मौजूद है। जिथे वेखो जह जह पेखो तह हजूर, दूर कथू ना जाई। रब रहा सरबत्र में, कहते सब दे अंदर उही है, कोई होर नहीं है, कोई दूजा नहीं है जिहड़ा जल थल महियल सोए। तुसी ही प्रभु हर एक दे विच वसे होए हो, ते दूसर नहीं है। गुरु अर्जन साहब जी यही समझाते, प्रभु गुरु के सिखो भाई, होर सारे आसरे मन दे एक वारी संकोच के किथे प्रभु दा आसरा लईए, किथे गुरु दे शब्द दे राहीं उस सच्चे पातशाह दा आसरा लईए। फिर पता लगेगा कि हर थां ते उहदी ही समर्था, उहदी ताकत वरत रही है। इसी गल नूं गुरु अर्जन साहब महाराज जी हुण 80 तुकां दे विच समझाउंदे ने। अष्टपदी दे विच आओ जी सरवण करिए। साहिब जी की किरपा करते ने जी। अष्टपदी करण कारण करना, करण करावन करना जोग, जो तिस भावै सोई होग। करण करावन करना जोग। हुण इत्थों सारे शंके खत्म हो गए। कोई बंदा ये कहंदा मैं उद्यम करांगा तो कारज होएगा, पर सतगुरु जी इस तो भी उपरली अवस्था दसदे कि भाई जिस वेले प्रभु की किरपा होएगी वो वरतेगा तो उद्यम भी ताइयों होएगा। उहदी किरपा तो बिना उद्यम भी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं है जिहड़ा हुज्जत करके, हिम्मत करके कोई उहदे हुक्म तो बाहर जाके उद्यम कर ले। करन करावन, करण वाले भी, करावन वाले भी, करना जोग ते जोग देण वाले भी, उद्यम देण वाले भी। करण वास्ते किसी काम नूं जोग भाव तरीके दे नाल वो काम सिरे चढ़ाउण वाले भी, करना जोग उही ने, कोई दूसरा नहीं है। करण करावन करना जोग, जो तिस भावै सोई होग। कर रहे ने, करा रहे ने, उद्यम करो करावो ठाकुर, ये करण वाले भी उही ने सतगुरु जी। ते फिर जो तिस भावै सोई होग, कारज सफल होए या ना होए, ये फिर वो आप ही वरतदा है। जो प्रभु नूं भाउंदा है अंत दे विच उही होना है जी। खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। धन गुरु अर्जन साहब जी कहते ये तो इन्ना समर्थ प्रभु है, एक खिन दे विच थाप दिंदा ते फिर एक खिन दे विच उथाप दिंदा, बना दिंदा, नष्ट कर दिंदा। इन्ना समर्थ है, उहदे अगे किहदी चल जाएगी। इनू ही क्या खिन मह, एक खिन अख दे फौर जिन्ने, अख दे झपकण जिन्ना उस प्रभु को समर्थ है, जिहड़ा थाप दे ते फिर थाप के उथाप कर दे। किसी का विनाश वो खिंचे कर सकता है, किसी नूं बना सकता है वो खिन दे विच। खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। इस ताकत करके प्रभु तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकता जी। हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे धार अधर रहावै, ये सारी सृष्टि बनाई है, धारिया है, पर अधर बिना किसी होर आसरे तो प्रभु ने ये धरती टिकाती। बिना किसी आसरे तो ये आसमान, ये ब्रह्मांड। तो सतगुरु जी कहते जे कोई प्रभु का आसरा ले ना, फिर किसी होर आसरे की लोड़ नहीं है। बिना होर सारे अधर कहते हैं, बिना होर अधर
ਧਰ ਭਾਵ ਆਸਰੇ, ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੂਸਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਢੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਆਸਰਾ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਭੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ, ਧਾਰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਧਰ ਰਹਾ ਵੈ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਊਚ ਜਾਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਪਾਤ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਰਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤਰੁੱਠੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀ ਅਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਤਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ।
पर प्रभु जे भावेगा ताइयों वो तरेगा। पत्थर हिरदे भी तर जाते ने जी। प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। ये जिहड़ी इस अष्टपदी के दूसरे पदे की गल है ना, वो मन दे विच पूर्ण विश्वास पैदा कर देंदी है कि कोई ये ना कहे। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं कि उस प्रभु के घर दे विच कोई भी गल इंपॉसिबल है। सतगुरु जी कहते ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये इंपॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। सतगुरु जी कहते हैं देखो, प्रभ भावै तां पाथर तरावै, जे ओनू भाए तो पत्थर भी तर जाता है इंपॉसिबल है इंपॉसिबल, पर जे वो चाहे तो पत्थर भी तार सकता। देवा पाहन तारीअले, पत्थरां नूं तारन वाला भी वो है। हुण एक साखी है बड़ी कीमती। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहब की धरती ते चरण गंगा स्टेडियम जिथे गुरु साहब होले महल्ले दियां खेडां खिडाउंदे सी, अज भी वो पुरातन रवायत अनुसार महल्ला उत्थे कढ़िया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, भाई नंद लाल जी, 2-3 सिंह होर वो गुरु साहब नाल भाई नंद लाल जी गुरु साहब तो कि पातशाह जी ते केड़ा डुबदा है। महाराज जी अपनी मौज दे विच तुरी जांदे सी, हत्थ दे विच सतगुर जी ने वो पहाड़ी पत्थर जे चक्के होए गोल जे, उन्होंने कदी एक हाथ तो उछाल के दूजे हाथ च, दूजे तो उछाल के पहले एक तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, ये साखी है प्राचीन 100 साखी च भी जिक्र है। वट्टा कदी सज्जे हाथ तो खब्बे, खब्बे तो सज्जे, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वो वट्टा थले चरण गंगा स्टेडियम जिथों पानी की चोई पानी लंघ रहा सी उहदे विच सुट दिता। ये लाजमी पत्थर का सुभाव है, पानी के अंदर डिगेगा तो वह डुब जाएगा। वो पत्थर अंदर थले तक चला गया। महाराज कहते सिखां नूं कि दसो भाई ये पत्थर क्यों डुब गया, ये पत्थर क्यों डुब गया। एक सिंह कहना महाराज जी पत्थर भारा है तो पानी के अंदर डिग्या तो डुब गया। दूसरा कहता महाराज पत्थर का सुभाव है कि उन्हें पानी के अंदर डुबना ही डुबना है। ये एक कुदरत की इस तरह की ही रीति है, ये कुदरत का सुभाव है कि पत्थर पानी च सुटिया जाएगा क्योंकि पानी तो ये भारा है और इन्हें डुब जाना। भाई नंद लाल नूं पुछया कि भाई दसो तुसी ये पत्थर क्यों डुबिया। हुण भाई नंद लाल सोची पै गए, ये कोई चोज है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। पातशाह जी चोजी मेरे गोबिंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जीओ। भाई नंद लाल कहंदा गल मुकदी इन्नी है, ना मैनू पत्थर के सुभाव का पता है, ना मैनू ये पता है कि कुदरत ये कहती है कि पत्थर पानी विच डुब जाता है, ना मैनू ये पता है कि पानी पत्थर नूं अंदर डुबो लैंदा है। मैनू इन्नी गल पता है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, जिहड़ी चीज़ तुहाडे हत्थों छुट जाएगी ना उन्हें डुबना ही डुबना है। भावें वो पत्थर होए ते भावें वो सिख होए, जिहड़ा गुरु दे हत्थों छुट गया, जिहड़ा गुरु तो निकल गया, गुरु दे दायरे तो बाहर चला गया, उन्हें डुबना ही डुबना है। उन्हें एक गल कही कि गुरु जे चाहे तो पत्थरां दा भी सुभाव बदल सकता है, पानी का भी सुभाव बदल सकता है। जे वो रब चाहे तो इस माया का इन्हां तत्तां का भी सुभाव बदल देंदी है। वो की नहीं कर सकती। प्रभ भावै तां पाथर तरावै। इस करके भाई नंद लाल कहते गुरु के सिखो, जे गुरु तो विश्वास तोड़ता ना, जे सोच लिया ये नहीं हो सकता, फिर देखो फिर नहीं हो। जे इंपॉसिबल नूं भी जे सोचा जाए कि होएगा, गुरु करावन वाला है, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, ते भाई नंद लाल कहते फिर वो कम होना ही होना है। गुरु अर्जन साहब जी इनू पहले ही समझा के गए हैं, भाई मन च किसी चीज़ का शंका ना रखो, ये तो भुलेखा है, ये सिर्फ मन दायरा फेंसिंग ला दिंदा कि नहीं जी नहीं ये नहीं होना। गुरु अर्जन साहब जी कहते कोई ऐसा कारज नहीं है जिहड़ा नहीं होना। इस तो उत्ते की है प्रभ भावै बिन सास ते रख है। जे प्रभु भावन ते आए तो सा तो बिना भी रख दिंदा प्रभु, बिना सावां तो भी रखण वाला, मरण तो भी। इस तो इहदा की अर्थ करोगे हुण, सा आ रहे ने तो जीवन है, पर जे बिना सा तो कोई जीवन कहे है ये तत्तां दे सुभाव तो
कुदरत के सुभाਅ तो उल्ट। तो गुरु अर्जन साहब जी कहते जे प्रभु भाए ना तो फिर ये तत्तां दे सुभाਅ तो भी उल्ट कारज हो सकता है। इनू ही सतगुरु जी ने कहा कि रब तत्तां दा सुभाਅ भी बदल सकता है, इस करके ये ना कहो कि ये नहीं हो सकता। सतगुरु जी कहते सब कुछ हो सकता है, प्रभ भावै बिन सास ते राखै। प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। ऐसा मनमुख मनुख जिन्हें कदी प्रभु का नाम नहीं लिया, जे प्रभु की कृपा हो जाए ना तो अपने मुख तो प्रभु के गुणों नूं भाखै बोलन लग पेगा, वो प्रभु के गुण उच्चारण करन लग पेगा। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं सब तो वड्डा उस प्रभु का शुकराना ये करो कि प्रभु ने कृपा करके अपने गुणों नूं इस जुबान तो, इस तुच्छ जुबान तो आखण की दात बख्शी है। इस तो वड्डा शुकराना कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु जे पाउंदा है, जे प्रभु होंदी है ताइयों कोई अपने प्रभु के गुण गा सकता है जी। प्रभ भावै तां पतित उधारै, आप करै आपन विचारै। प्रभु जे पाउंदा है ते पतित नूं भी उधार सकदा है। पतित वो ने जिहड़े गुरु तो वादा लैके भी मुकर जाते हैं, जिहड़े प्रभु की गल नूं मुकर जाते हैं। जी कहते जे प्रभु चाहे तो पतित का भी उधार हो सकता है। प्रभ भावै आप करै आपन विचारै। वो जो कुछ करना है उन्हें किसी नूं पुछ के नहीं करना। सच्चाई ये है, उन्हें किसी नूं पुछ के नहीं करना, किसी दी विचार जां किसी दा फैसला नहीं लेना। उन्हें जो करना है आप विचार के करना है। ये उस प्रभु दी अपने अंदर दी बिरती है, ये ताकत है, समर्था है। जे किसी माड़े नूं चंगा बनाउणा है किसी नूं पुछ के नहीं बनाउणा, जे किसी चंगे नूं माड़े पासे तोड़ देना है ये भी आप ही विचार के करना है, किसी नूं पुछ के, किसी दी सलाह या समर्था ते नहीं। इनू ही क्या आप करे आपन विचार है, वो आप करदा है आप ही विचारदा है जी। दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेला बिकसै अंतरजामी। दोहां सिरियां का इत्थै उथै रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। सबना सौरे वजना सब मुकलावन हार। कहते इत्थे भी तो उत्थे भी, सौरे ते पेके इत्थे इस लोक का भी तो परलोक का भी। वैसे परलोक तो यही है, पराया तो यही है, वो तो अपना है। इत्थे ते उत्थे दोहां सिरियां का आप स्वामी उही है। खेला बिगसै अंतरजामी, आप खेड रहा है, आप ही खिडा रहा है, जानदा सब कुछ तो आप ही देख के खुश हो रहा है, बिगस रहा है जी। उही करन वाला है जी। जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै। जो तिस साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो भावै सो कार करावै, जो तिस भावै। जो प्रभु नूं भाउणा है उही भला होना है, अंत दे विच उही वरतना है, उही वरतेगा। जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै। नानक दृष्टि अवर ना आवै। धन गुरु अर्जन साहब जी कहते सानू इस नज़र तो, सानू इस दृष्टि तो कोई होर नहीं नज़र आउंदा जो उस प्रभु वड्डा, प्रभु वर्गा, इन्ना असीम ताकतवर, इन्ना बख्शिश वाला। बस कोई उहदे उत्ते पूर्ण विश्वास करके अपने जीवन नूं उस प्रभु दे मार्ग वाले पासे तोर पे। कोई कारज करना है, कोई अंदर दी बिरती, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई झोरा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कहते बस उहदे ते विश्वास रख के तुरो, सब कुछ हो सकता है। जे वो भावे तो बिना साह तो भी रख सकता है, वो भावे तो तत्तां दा सुभाव बदल के पत्थर भी तरा सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो अंत दे विच यही सतगुरु जी दूसरे पदे दे विच नानक दृष्टि अवर ना आवै। कहते साडी नज़र दे विच कोई होर दूजा नहीं है जिहड़ा इन्ना क ताकतवर होए। सो अज दो पदियां दी विचार 11वीं अष्टपदी दी कीती है। सो आप सारियां संगतां दा शुक्रगुजार है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करन, कृपा करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की